নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সাময়িকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সাময়িকীত আমাৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে পৰম পিতা ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ বিষয়ে। এই বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ সুদূৰ মাউণ্ট আবুৰ পৰা প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ সন্মানীয় ট্ৰাষ্টি শ্ৰীকান্ত ভাইক। आपको स्वागतम स्टूडियो में। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গুৱাহাটীৰ ট্ৰাষ্টি পকিলা বেহেন আৰু এপি বেহেন। आप दोनों को स्वागत है। প্ৰিয় দৰ্শক, ব্ৰহ্মকুমাৰীক লৈ বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন মতাদৰ্শ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ আছে। বহু লোকে ব্ৰহ্মকুমাৰীক কি প্ৰকৃতাৰ্থত জানিবলৈ বিচাৰে। বহুতে ভাবে ই এক কঠোৰ বৈৰাগ্য নীতি নেকি বা স্বাভাৱিক জীৱন যাপনৰ পৰা আমাক আঁতৰাই লৈ যোৱা এক জ্ঞান নেকি। সেই সকলোবোৰ কথাৰ আজি আঁতিগুৰি মাৰি আমি আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'ত। গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এখেত যিহেতু মাউণ্ট আবুৰ পৰা আহিছে, তেখেতক আমি হিন্দীতে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো ব্ৰহ্মকুমাৰী পখিলা বেহেনলৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, ব্ৰহ্মকুমাৰী মানে কি? নিজ ঘৰ সংসাৰ পৰিয়াল ত্যাগ কৰিবলৈ সংকল্প কৰোৱাই নেকি এই ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ জ্ঞানৰ ক্লাছত? অকণমান বিশদকৈ ক'ব। ওম শান্তি। নমস্কাৰ সকলো দৰ্শকলৈ। আচলতে ব্ৰহ্মকুমাৰী এক সংস্থা। বহুতে ভাবে ইয়াত এটা ধৰ্ম অনুষ্ঠান। ইয়াত ধৰ্ম অনুষ্ঠান নহয়, এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান। ইয়াত আমাৰ শিক্ষা দিয়া হয়, ইয়াত ৰাজযোগৰ শিক্ষা দিয়া হয়। ইয়াতে জাতি ধৰ্ম নাই, সকলোৱে ইয়াতে আহি শিক্ষা ল'ব পাৰে। ইয়াৰ আচল অনুষ্ঠান আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল মাউণ্ট আবু। ভগৱানে নিজেই আহি এক মনুষ্য শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি, ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁৰ দ্বাৰা এই শিক্ষা অনুষ্ঠান স্থাপন কৰা হয়। আৰু এই ভগ্নী অনুষ্ঠান, এই ভগ্নীবিলাকৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হয়। ইয়াতে গোটেই ৱৰ্ল্ডতে 4,000ৰো অধিক চেণ্টাৰে আমাৰ এই সেৱা কৰি আছে। ইয়াতে ৰাজযোগ আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া হয়। আমাৰ নামনি অসমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল ৰূপনগৰ, গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত। আমাৰ গুৱাহাটীতে 23টা ব্ৰাঞ্চে সেৱা কৰি আছে। সকলোতে একেই শিক্ষা দিয়া হয়। আমাৰ অসমত অসমীয়াত শিক্ষা দিয়া হয়, হিন্দীতো শিক্ষা দিয়া হয়, কোনোবাই বিচাৰিলে ইংলিছতো দিয়া হয়। কিন্তু গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল মাউণ্ট আবুত। মাউণ্ট আবুত আমাৰ হেড আছে, চিফ এজন। তেখেতৰ নাম হ'ল দাদী ৰতন মোহিনী দাদী। আমি দাদী বুলি কওঁ। তেখেতৰ বয়সো হৈছে, সেইকাৰণে আমি দাদী বুলি কওঁ। তেখেত হ'ল আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ হেড চিফ। ইয়াতে আমাৰ 16টা ভাষাত শিক্ষা দিয়া হয়। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে অসমতো আমাৰ 23টা ব্ৰাঞ্চত অসমীয়াটো সেইজনে যি বিচাৰে, যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ শিক্ষা দিয়া হয়। এই ৰাজযোগৰ শিক্ষা দিয়া হয়। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কোৱা হয়। ভগৱানে দিয়া এই শিক্ষা অনুষ্ঠান। সেইকাৰণে আমাৰ এই ভগ্নী অনুষ্ঠান, এই প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ধন্যবাদ বাইদেউ। मैं अभी आपके पास आती हूँ। व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? और ब्रह्म कुमारी में आत्मा का क्यों ज्ञान आत्मा के ऊपर दिया जाता है? ओम शांति। तो आपने पूछा कि आत्मा क्या है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है और उस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सूक्ष्म शक्ति है वो आत्मा, जिसको अलग अलग धर्मों में कहूँ या अलग अलग शास्त्रों में कहूँ, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई इसको सोल कहते हैं, कोई जीव कहते हैं, कोई प्राण कहते हैं, कोई नूर कहते हैं। तो ये एक एनर्जी है जो हमारे बॉडी को चलाती है। जैसे कि बॉडी एक कार है और उस कार को चलाने वाली जो ड्राइवर है वो आत्मा है। वो आत्मा इस शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहाँ पे विराजमान है। मतलब वहाँ पे उस आत्मा का शरीर में स्थान है। और आत्मा वहाँ से पूरा
शरीर के द्वारा कर्म कराती है। माना इस मुख के द्वारा बोलने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। इस नयनों द्वारा देखने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा को कहा जाता है कि सतोगुणी आत्मा है। तो आत्मा ये 7 गुणों से संपन्न है। उसके पहले ये आत्मा जो है, आत्मा की 3 चैतन्य शक्तियाँ होती है। एक होती है मन, दूसरी बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो विचार करने की शक्ति है, बुद्धि जो है वो निर्णय लेने की शक्ति है, और हमारा कर्म जो होता है, जो मन में विचार आए और बुद्धि ने हमारे उसके ऊपर डिसीजन लिया, और जो कर्म होता है वो बार बार होने से संस्कार बन जाता है, माना हैबिट्स बन जाते हैं। तो आत्मा जो है इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठकर इस शरीर को चलाती है। माना शरीर भिन्न है और आत्मा अलग है। इसीलिए हम शरीर के बारे में जब कहते हैं तभी मेरा कहते हैं, हाँ, और हमारे बारे में, मन के बारे में या चैतन्य शक्ति के बारे में जब कहते हैं तभी मैं कहते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, मेरा सर है, हाँ, लेकिन मेरा मेरा कहते हैं। लेकिन मैं मतलब उस वक्त मेरा कहते हैं, माना क्या है कि मैं हाथ नहीं हूँ, हाँ, मैं सर नहीं हूँ, उससे अलग है। जैसे मेरा शर्ट है या मेरा मोबाइल है, उसी प्रकार से मेरा हाथ है, हाँ, मेरा सर है या मेरी आँखें हैं। लेकिन हम शरीर के बारे में बोलते हैं वक्त ऐसे बोलते हैं, लेकिन मन को जब कोई भी भावनाएं टच होती है या फीलिंग्स होती है तभी मैं कहते हैं। हाँ, जैसे कि मैं अभी खुश हूँ, मैं अभी दुखी हूँ, हाँ, कि ये जो खुशी है, ये दुखी है, ये आत्मा को फीलिंग होती है, मतलब मुझे फीलिंग होती है। ये शरीर से भिन्न है। माना आत्मा, इन शॉर्ट, आत्मा ये शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जो मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों से बनी हुई है। और आत्मा सतोगुणी है, जैसे कि जो 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो ये 7 गुण से बनी हुई आत्मा होने के कारण ये 7 गुण ही उस आत्मा को हमेशा डिमांड करते हैं। जैसे 5 तत्वों से शरीर बना है तो शरीर को 5 तत्व ही लगते हैं, वैसे आत्मा सतोगुणी है, इसलिए आत्मा को 7 गुण ही लगते हैं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आज मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, मुझे दुख चाहिए, मुझे अशांति चाहिए, मुझे मतलब शांति ही चाहिए, हाँ, मुझे सुख ही चाहिए। माना जो हमारे गुण है वही हमारे स्वरूप है, तो उसी पर आत्मा मतलब उसी स्वरूप में रहना चाहती है, तो उसी का डिमांड करती है। तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, इस शरीर को चलाने वाली, मतलब शरीर गाड़ी है और शरीर को चलाने वाली ड्राइवर है। धन्यवाद। मैं आपको एपी बहन के पास आती हूँ। हमारा मन और बुद्धि क्यों विकार होते जा रहे हैं? अभी तो कुछ जो परिस्थिति है पूरा विदेश में, इसमें मन और बुद्धि का संघर्ष चलते रहते हैं। तो मन बुद्धि को कैसे हम काबू में लाए, इसमें ब्रह्मा कुमारी का कितना अवदान है? ओम शांति। जैसे आपके प्रश्न था कि आज दिन ब दिन मन बुद्धि क्यों भटक रहे हैं, या फिर हम इसको नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे है ना, यह प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम स्वयं को जानेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा जो है दिव्य शक्ति है, जो दिव्य शक्ति जो 7 गुणों से बने हैं। लेकिन ये 7 गुणों बने हैं, लेकिन कैसे कार्य करते हैं? मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा। तो जब मैं स्वयं को जानेंगे तो मैं आत्मा हूँ और मालिक हूँ, और ये मेरा मन को भी मैं कहती हूँ ये मेरा मन। मैं ये नहीं कहती कि मैं मन हूँ या मैं बुद्धि हो, नहीं कहते हैं। मैं मन नहीं कहता, मेरा मन कह जाता है। तो उसका मतलब मन, बुद्धि और संस्कार भी क्या है? मेरा शक्ति है, फैकल्टी से, जिस द्वारा से मैं कर्म करती हूँ। जैसे मन के द्वारा सोचने का काम करते हैं। मन एक फैक्ट्री है, थॉट फैक्ट्री, जो सोचने का काम करते हैं। और बुद्धि जो है इसका निर्णय करते हैं कि सही क्या है, समझ। हाँ, और संस्कार जैसे भाई साहब ने कहा हमारे हैबिट्स होते हैं,
है ना। तो जब मैं स्वयं को पहचानूंगी और मैं स्वयं एक दिव्य शक्ति हूँ और फिर ये मन मेरा शक्ति है, तो मैं अपने मालिकपन के हिसाब से ये इस मन को कंट्रोलिंग करते हैं और बुद्धि को भी हम कंट्रोलिंग करते हैं और फिर संस्कार हमारा दिव्यता आ जाती है। और ये कैसे आती है? स्वयं पहले मेरे जो संस्कार है, जो मेरा दिव्य शक्ति है, ये सातों स्वरूप को मैं स्वयं बार बार स्मृति में लानी है और मैं स्वयं का ही पहचान पहले चाहिए, तभी जा कर के मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा मैं कर्म करूँगी। जैसे अभी मेरा हाथ, मेरा पैर, ये स्वयं तो नहीं चलता। हाँ, इसको हाथ को मैं चलाती हूँ, पैर को भी मैं चलाती हूँ, शरीर को भी मैं चलाती हूँ, देखना, बोलना, सुनना ये मैं करती हूँ। इसलिए इसी तरह मन जो है सूक्ष्म है या बुद्धि सूक्ष्म है, तो इसको भी मैं चलाती हूँ। बहुत धन्यवाद बहन, बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगी आपके पास। मैं इतना पखिला बाइदेउर ओसरले आहिছোঁ। बाइदेउ, ब्रह्मकुमारीत राजযোগ শিকায়। आसलते এই राजযোগ কি আৰু এই যুগে মানুহক কিদৰে উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে অকণ বিশদকৈ কওক। ওম শান্তি। ৰাজযোগ হ'ল আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ৰাজযোগেই শিক্ষা দিয়া হয়। ৰাজযোগ এটা মানে নিজক পৰিচালনা কৰিব পৰা এটা শিক্ষা। ৰাজযোগ, যোগ অৰ্থাৎ যেনেকৈ হঠযোগীবিলাকে যোগ শিকায়, শৰীৰৰ এক্সাৰচাইজ কৰে। এনেকুৱা নহয় যে শৰীৰ ঠিক নহয়, শৰীৰ ঠিক হয়। হঠযোগৰ দ্বাৰা শৰীৰ ঠিক কৰা হয়। আমাৰ ৰাজযোগৰ দ্বাৰা মন বুদ্ধিক একত্ৰিত কৰি আমি পৰমাত্মাৰ লগত যেতিয়া মিলন হ'ম, তেতিয়া পৰমাত্মাৰ পৰা শক্তি পোৱা যায়। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি নিজক চিনি পাব লাগিব, মই কোন। আমি মই মোৰ বুলি কওঁ দুটা বস্তু, মোৰ ঘৰ, মোৰ দেউতা, মোৰ মা, মোৰ শৰীৰ। মই বোলা বস্তুটো হ'ল মই এটা শক্তি মাথো, এটা চৈতন্য শক্তি। সেই শক্তি ক'ত থাকে, থকা স্থান জানিব লাগিব। যেতিয়া আমি নিজৰ পৰিচয় পাম, তেতিয়া ভগৱানৰ পৰিচয় পাম। সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ পৰিচয় পাবৰ কাৰণে মই কোন? মই এটা আত্মা। আত্মা চৈতন্য শক্তি। আত্মা ক'ত থাকে? ই দুভুগুটিৰ মাজত। যেনেকৈ গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰে আগত বহি গোটেই গাড়ীখন পৰিচালনা কৰে। গাড়ীখনত যদি কিবা এটা বেয়াও হয়, চব কথা ড্ৰাইভাৰে জানে, আমি উঠাজনে কেতিয়াও নাজানো। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ আত্মা যেতিয়া চৈতন্য শক্তি আগত বহি আমাৰ শৰীৰটোক পৰিচালনা কৰে, আমি ভাল বেয়া চব কথা জানো। জানিও আমি কিছুমান কথা বেয়া কাম কৰোঁ। বেয়া কামৰ কাৰণে আমি দুখী হওঁ। এতিয়া সুখ পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? যে বেয়াখিনি আমি বাদ দিব লাগিব। বেয়াখিনি বাদ দি ভাল কাম কৰিব পাৰিলেহে চৈতন্য শক্তিয়ে কি কৰিব? চৈতন্য শক্তিৰ লগত পৰমাত্মাৰ লগত যেতিয়া মিলন হ'ব, তেতিয়া আমি ৰাজযোগ বুলি কওঁ। পৰমাত্মাৰ পৰা শক্তি পাম, তেতিয়া প্ৰেম, আনন্দ, খুচি আমি সকলোবিলাক আমি ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ভিতৰত কি আছে? অৰিজিনেল কিছুমান শক্তি আছে, প্ৰেম, আনন্দ, খুচি, দৈৱিক গুণ আছে। কিন্তু সেইবিলাক আমি জনম বাই জনম লৈ কৰ্ম কৰি বেয়া কৰ্ম কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ লোপ পালে। এতিয়া আমি সেই কৰ্ম যে শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম কৰি আমাৰ দৈৱিক গুণবিলাক জাগৃত কৰিব লাগিব। যেতিয়া দৈৱিক গুণ জাগৃত কৰিব পাৰিম, তেতিয়াই আমি কি কৰিব পাৰিম? পৰমাত্মাৰ লগত আমাৰ মিলন হ'ব, পৰমাত্মাৰ পৰা শক্তি পাম। যেনেকৈ লোট মামৰে ধৰিলে চুম্বকে কেতিয়াও আকৰ্ষণ নকৰে, ঠিক তেনেকুৱা পৰমাত্মাৰ লগত আমি মিলন হ'ব খুজিলে আমাৰ ভিতৰত যেতিয়া বেয়া গুণবিলাকে আৱৰি আছে, আমি কেতিয়াও পৰমাত্মাৰ লগত মিলন হ'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ বেয়া আৱৰণবিলাক, বেয়া অৱগুণবিলাক আমি যেতিয়া ত্যাগ কৰিব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ আত্মা শক্তিশালী হ'ব। তেতিয়া পৰমাত্মাৰ লগত যেতিয়া মিলন হ'ম, তেতিয়াই আমি পৰমাত্মাৰ পৰা শক্তি, প্ৰেম, আনন্দ, খুচি আমি সকলো যি বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ। আমি কৰিব নোৱাৰা একো কাম নাই। কিন্তু আমাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক আমাৰ অৱগুণ আছে, অৱগুণবিলাকক আমি ত্যাগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া ৰাজযোগ বোলা বস্তুটোৱে হ'ল পৰমাত্মাৰ লগত যিটো মিলন, পৰমাত্মাৰ পৰা আমি যেতিয়া গুণ শক্তি আমি ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হ'ল ৰাজযোগ। হয় বাইদেউ, ৰাজযোগ কেতিয়া কোনো সময়ত শিকোৱা যায় তাৰ অকণমান আভাস দিয়ক। ৰাজযোগ আচলতে আমাৰ সময়ৰ কোনো হেৰি নাই। আমাৰ এনেই কিছুমান চেণ্টাৰ আছে
অসমৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডতে চেণ্টাৰ আছে, কিন্তু অসমৰ আমাৰ নামনি অসমত আমাৰ 23টা ব্ৰাঞ্চ আছে গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে। আমাৰ ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 11টা বজালৈ এই অনুষ্ঠান খোলা থাকে। সেই সময়ত যোনে যেনেকৈ পাৰে 1 ঘণ্টাৰ সময়, আমাৰ একো দিব নালাগে, এই 1 ঘণ্টা সময় দিব লাগে। এই 1 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰাজযোগ শিকোৱা হয়। আচলতে ইয়াতে 7 ডেজ এটা কোৰ্চ কৰা হয়। একদিনতে আমি অকণমান কিবা দিব পাৰোঁ, কিন্তু 7 ডেজ যেতিয়া কোৰ্চ কৰা হ'ব আমি সকলোখিনি দিব পাৰোঁ। যে ৰাজযোগ কৰিবলৈ হ'লে, ভগৱানক মনত কৰিবলৈ হ'লে আমি কেতিয়াও সময়ৰ নিৰ্ধাৰিত নাই, আমি যেতিয়া তেতিয়া কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া আবেলি 4টাৰ পৰা 8টা বজালৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান খোলা থাকে। সকলো মানুহে যাই ইয়াতে শিকিব পাৰে। কোনো জাতি ধৰ্ম কোনো নাই, কোনো একো নাই, কাৰো ভেদাভেদ নাই। আমি সকলোৱে এক ভগৱানৰ সন্তান। যেতিয়া সকলো আত্মা আমি ভাই ভাই, শৰীৰ ৰূপত আমি ভাই বেহেন, সকলোৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে খোলা আছে। সকলোকে আমি ৱেলকাম কৰোঁ। হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ। মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। भाईजी, एक प्रश्न है आपके लिए। संपूर्ण दिन में हम काम करने वक्त अनेक परिस्थिति में हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और जैसे कर्मस्थान से घर हम जाते हैं शाम को, तो बहुत माता पिता आजकल तो सब कर्मस्थान में बिजी रहते हैं, तो ये जो उनका इरिटेशन बढ़ जाता है, मतलब घर पर जाकर ये जो इरिटेशन, क्रोध, मतलब कर्मस्थान का इरिटेशन घर में जाकर नहीं भूल पाते हैं, तो उसका असर बच्चे के ऊपर क्या पड़ते हैं? और पूरा वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो उस वाइब्रेशन से बच्चों का, परिवार का क्या मतलब नष्ट हो सकता है एक्चुअली। तो इसमें ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है और बाकी जो ज्ञान है, मुरली है, तो ये कैसे इनको सहायता करते हैं इससे, मतलब हमको फाइट करने में, इससे हमको परित्याग करने में? जैसे आपने कहा कि मतलब दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए मनुष्य जब अपने घर में आता है, तो उसकी जो स्थिति है, वो स्थिति के कारण माना दिन भर उसने जो भी फेस किया है, जो भी उसके साथ घटनाएं घटी है, तो उसके कारण उसको जो भी मतलब स्ट्रेस है या टेंशन है, वो आकर उसके घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका कहना था। तो इसमें एक तो पहली बात है कि आपने पूछा कि राजयोग इसमें कैसे मदद कर सकता है। तो राजयोग क्या है, ये पहले हमें समझना चाहिए। जैसे भी बोकिला दीदी बता रहे थे कि राजयोग के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि राजयोग जो है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कि राजयोग जो है वो हमारे जीवन में डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे मान लीजिए कि मिलिट्री मैन जो भी होता है, रिटायर हुआ, तो मिलिट्री में जब वो जॉब करने के लिए जाने के पहले, जब वो युवा अवस्था में होता है, तभी वो बहुत एक्टिव होता है। क्योंकि मिलिट्री में जाने वाला जो भी व्यक्ति है वो एक्टिव ही होना चाहिए, है ना। तो वो पहले बहुत एक्टिव होता है, बहुत भाग दौड़ करता है, खेल कूद करता है, हंसी मजाक करने वाला होता है। लेकिन जब वो मिलिट्री में जाता है, तो मिलिट्री में जाने के बाद उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। और ट्रेनिंग में वो क्या सीखता है कि डिसिप्लिन सीखता है। पूरा दिन का जो है उसके जो रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन सीखता है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो उसको ग्रहण करता जाता है, एक्सेप्ट करता जाता है और अपने जीवन में वो अप्लाई करता है। तो अप्लाई करता है, तो उसके बाद जब वो रिटायर होता है, तो रिटायर होकर जब वापस आता है, तो उसकी जीवन जीने की पूरा जो ये पद्धति है पूरी चेंज हुई होती है। जब वो मिलिट्री में जाने के पहले और मिलिट्री से आने के बाद उसकी जीवन जीने की पद्धति चेंज होती है, क्योंकि उसने बीच में जो ट्रेनिंग लिया वहाँ डिसिप्लिन सीखा उसने, और उसका जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो उसी प्रकार बन गया। तो राजयोग जो है हमें जीवन में डिसिप्लिन सिखाता है। तो सबसे पहले कि राजयोग जो है वो राजयोग माना हमारे मन को सकारात्मक विचारों की तरफ दिशा देता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग की परिभाषा क्या है। हर बात की डेफिनेशन होती है, वैसे योग की भी परिभाषा है। योग माना क्या है कि जब मनुष्य आत्मा अपने तन तथा तन से संबंधित जो भी बातें हैं उसको भूलकर अपने मन को एक ईश्वर के याद में या परमात्मा की याद में मन को स्थित करता है, तभी उसके मन की जो वो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को योग कहा जाता है।
या ध्यान कहा जाता है। देखिए योग अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब जैसे दीदी बता रहे थे कि शरीर के लिए भी योग है, योगा है, वो आसन है, वो शरीर को मतलब हेल्दी रखने के लिए वो योगा है। लेकिन हमारे मन को हेल्दी रखने के लिए राजयोग है। जैसे कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए शरीर की जो अनेक अनेक पार्ट्स है, उस पार्ट्स को हम क्या करते हैं, मतलब व्यायाम करके स्ट्रांग बनाते हैं। वैसे मन जो है, मन हमारे मतलब जीवन का एक बीज है, सीड है। तो उसमें जो भी आप डालेंगे उसी प्रकार से मतलब पौधा आएगा और वो बड़ा वृक्ष बनकर उसी प्रकार का सारा जीवन अपना बन जाएगा। इसी प्रकार मन जिस प्रकार मतलब बीज जिस प्रकार का बोया है उसी प्रकार से जीवन बनता जाएगा। तो बीज कौन से है? हमारे विचार रूपी बीज है। तो हम इस मन को जिस प्रकार के विचार रूपी बीज देंगे उस प्रकार का वृक्ष खिलेगा। ये भी बोल दीजिए, ऑफिस के आने के बाद लोगों को एक्चुअली राजयोग करना चाहिए थोड़ा समय के लिए आएगा। तो ये जो मन की अवस्था है, ये जो मन की अवस्था है तो विचारों पर है। तो राजयोग हमें सिखाता है कि दिन भर हमें किस अवस्था में रहने हैं, मन को किस अवस्था में रखना है। हम कार्य करते वक्त हमारे स्वरूप में टिकेंगे। माना कार्य जब कर रहे हैं तो कार्य हम ये सृष्टि रूपी रंगमंच है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ आप एंकर की ड्यूटी निभा रहे हैं। घर में जाएंगे तो माँ की ड्यूटी निभाएंगे, पत्नी की ड्यूटी निभाएंगे या बेटी की ड्यूटी निभाएंगे। तो हर जगह अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो उस ड्यूटी में मतलब उस जो आपका एक्टिंग है, जो आपको रोल मिला है, उसमें आप खो जाए मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम जब ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम ऑफिस में जॉब करते वक्त हमें हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा एक कर्तव्य है और ये कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ। और वो कर्तव्य निभाते वक्त हमारे जो आत्मा के गुण है उस गुणों में स्थित होकर हम अगर कार्य करेंगे, जैसे शांति का गुण है, अगर शांति के गुणों में स्थित होकर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य पूरा शांतिपूर्वक हो जाएगा। अगर हम किसी मतलब जो भी घटनाएं हमारे सामने घटती है, जो भी हमारे सामने काम आ जाता है, तो जो भी क्रिया घटती है वो हमेशा प्रतिक्रिया मांगती है। हाँ, जो भी एक्शन होती रहती है वो हमसे रिएक्शन मांगती है। तो हम रिएक्शन किस प्रकार से देते हैं वो हमारे आत्मा की अवस्था पर है, मन की अवस्था पर है। तो मन की अवस्था जो अगर शांत होगी तो हम शांत रीति से उसको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई माना कौन सी घटनाओं को, मतलब इन आँखों द्वारा देखते हैं तो उसको भी हम रिप्लाई करना पड़ता है। जो भी हम बातें देख रही है तो उसको किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। हम इन कानों द्वारा जो सुन रहे हैं तो उसको किस एंगल से हम अंदर ले रहे हैं, उस बातों को किस एंगल से हम अंदर ले रहे हैं। या काम करते वक्त भी जो भी हमारे सामने आया है, भले उसका स्वभाव संस्कार किसी प्रकार का हो, उसका बिहेव किसी प्रकार का हो, उसके बोल भी किसी प्रकार के हो, लेकिन हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारी जो शांति है वो भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मालिक है। आत्मा कौन है? मालिक है। तो मालिक हमेशा जो है अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है। और ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है। तो दिन भर काम करते वक्त हम हमारे गुणों के साथ रहेंगे, हाँ, सदा हमारे आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। तो क्या हो जाएगा कि हम उससे उस सीट से उठकर जब दूसरी जगह जाएंगे, जैसे कि घर जाएंगे, तो हमारी अवस्था डिस्टर्ब नहीं होंगी, उसी प्रकार की होगी, है ना। धन्यवाद भाई साहब। मैं अभी अपी बहन के पास आती हूँ। बहन, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? क्योंकि थॉट प्रोसेस ही हमको चलाते हैं दिन, सुबह से लेकर शाम तक हम थॉट प्रोसेस की मतलब ये पुतला है। और खुशहाली जीवन के लिए हमें क्या संकल्प रखना चाहिए? जी, क्योंकि जीवन को चलाने वाला तो हमारे जीवन में जो चलता है वो तोत से ही चलता है। विचार जो है हमारे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम कहें कि हमको सुख की जीवन चाहिए, खुशी जीवन चाहिए, तो हमको हमारा जो तोत है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मन को पहले पॉजिटिव सिखाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे तो पहले बोलना भी नहीं आता है, चलना भी नहीं आता है,
तो उसको मम्मी पापा या घर में जो भी पेरेंट्स है उसको सिखाया जाता है जी। कैसे बोलना है, कैसे चलना है। तो इसी प्रकार अभी इस समय हमारे जो मनुष्य का मन जो है बिछड़ गए हैं, मन स्वयं से ही दूर हो गए हैं। तो ये मैनर्स जो सबसे पहले हम अपने मन को सिखाना है कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है ना। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम राजयोग में ये सीखते हैं कि डेली वाइज हमारा तोत कैसे चलना है। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি অমৃতবাণীৰ শিতানটো ইমানতে সামৰণি পেলালোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অমৃতবাণীলৈ নতুন বিষয় আৰু নতুন মানুহ লৈ আনিম। নিশ্চয়কৈ দৰ্শকসকলে আজি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ট্ৰাষ্টিসকলৰ পৰা বহুখিনি মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰিলে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনেই হৈছে আমাৰ অমৃতবাণীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। চাই থাকিব আই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।